Hello, my dear students. So, after a long break, once again, I am back with you. I am Ritu Kaushik, as you all know, psychologist, counselor, and your friend as well. So, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं and I'm sure इस ड्यूरेशन में आपने फुल ऑन मस्ती करी होगी, खूब खेले होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा होगा, एंजॉय किया होगा, पेरेंट्स को हेल्प किया होगा, घर में हेल्प किया होगा, कोऑपरेट किया होगा, बहुत सारी चीज़ों पे गुस्सा भी आया होगा, लड़ाई पर भी हुई होगी, है ना? भाई बहनों में लड़ाई होती है, फ्रेंड्स के साथ भी गेट involved in fight behavior and so on. So today the topic is how to manage that anger. Because when I used to talk to parents, generally parents used to say, बच्चे आजकल बहुत गुस्सा करने लगे. They are saying that children have become very aggressive. They are showing their anger. They are expressing their anger a lot. So I thought that why not talk to you about how you can manage your anger. एंगर है क्या, पहले हम इसे समझेंगे. एंगर आना, एंग्री होना, इज इट गुड या बुरा है? और अगर इफ आई फील दैट यस आई एम एंग्री, then how I should express it. So let's see what the PPT says about anger. And for anger, let me first choose the color for today. The color for today, and anger is more beautifully defined with the reddish color or the little orangish and the reddish color. Aag na, aag wala, fire symbol. And here we can see that this small boy is just lying on the ground and this one is trying to punch, right? Usko dara, ye wala, it's just shouting, violent, aggressive, and this one is a poor guy just lying on the ground trying to defend himself. Let's see. It is a natural emotion. Anger है तो वो natural emotion है. मुझे भी गुस्सा आता है, मम्मी पापा को भी गुस्सा आता है, टीचर्स को भी गुस्सा आता है, grandparents को भी गुस्सा आता है. So it is a kind of emotion, and because this is the difference between the animals and we human beings that हम अलग अलग तरीके के emotions feel करते हैं. हमारे अंदर अलग अलग तरह के emotions होते हैं, जबकि animals में वो aggressive हो जाते हैं, violent हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, right? लेकिन वो और बहुत सारे emotions नहीं feel करते, but yes, they are also very loving as well. Especially dogs are really very loving. बहुत अच्छा, बहुत care करते हैं वो आपकी. लेकिन जब हम human emotions की बात करते हैं, तो anger होना is a natural. It is a negative feeling which often happen when a person thinks that someone or something has been done wrong, bad, which puts them in danger. Where I feel that कुछ ऐसा हुआ है which I am not liking it, जो मेरी मर्जी के बगैर हुआ था, मुझसे बिना पूछे कर दिया, मेरे शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दिया. These elder people, they promised me that वो आज मुझे मॉल लेके जाएंगे, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, and I was waiting since morning, and all of a sudden now they are saying that no, plan is changed. I am angry. And very true, आप angry होंगे भी, because सुबह से आप वेट कर रहे थे उस प्लान का, और वो अचानक से पापा ने, मम्मी ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने आके ये कह दिया कि नहीं नहीं हम तो आज नहीं जा सकते. And it is quite natural that you are upset. अपसेट होने तक तो ठीक है, right? आपको गुस्सा आया, आपका मूड स्पॉइल हुआ, you just go to the another room, थोड़ी देर वहाँ बैठिए, डीप ब्रीथ करिए, पानी पीजिए, and then come back and just ask them कि भाई आज आप क्यों नहीं ले जा रहे हो, and then they will say कि आज ये emergency है. So there must be some or the reason, other reason which as a child you should understand. So गुस्सा कब आता है? जब हमें लगता है that we are in the situation of danger, कुछ हमारे साथ गलत हो गया, कुछ बुरा हो गया, and so on. Everyone feels annoyed, frustrated, irritated or even very angry from time to time. हम लोग सब गुस्सा करते हैं, अलग अलग तरह से गुस्सा करते हैं, अलग अलग situations में गुस्सा करते हैं, and अलग अलग तरीके से उसको express करते हैं. We definitely express our anger in a different way. Nobody has ever said that गुस्सा करना गलत बात है. Nobody has ever said. Because गुस्सा करना भी ज़रूरी है, because it shows my displeasure. But important is
हाउ टू एक्सप्रेस माई एंगर, मैं एक्सप्रेस कैसे करती हूँ, हाउ आई एक्सप्रेस माई एंगर। आपने बहुत टेस्टी सा योर मॉम हैज मेड अ वेरी डिलीशियस चॉकलेट फॉर यू और पिज्जा फॉर यू, लेकिन वो बड़े गंदे तरीके से रैप किया हुआ है एंड यू डोंट फील लाइक ईटिंग इट, राइट? नो मैटर, उसका टेस्ट चाहे कितना भी अच्छा हो। सो expressions are really important and you should always pay attention to that, right children? Then here this boy is just trying to close his ears because he is shouting, ये इतनी जोर से चिल्ला रहा है that this boy is thinking कि शायद उसके तो कान के eardrums पे असर पड़ जाएगा। Now know the difference between anger and aggression. Anger is a feeling, anger is a emotion जो मुझे महसूस हो रहा है, जैसे मुझे happiness महसूस होती है। I performed very well in the cricket match, I am feeling very happy. I won the match in badminton, I am very happy. I got my favorite ice cream, I am very happy. I got my favorite chocolate, I am very happy. I got the favorite dress of mine, I am very happy, right? And in the same way, I lost the match, I am upset, low, sad. Somebody has intentionally hurt me, I am in anger. So जब मुझे गुस्सा आता है वो anger है। गुस्सा कब आता है? When something has been done intentionally to me to hurt me. कई बार intentionally, कई बार unintentionally, but मुझे ऐसा लगा, I felt that maybe that person has done something intentionally to hurt me, तब मुझे गुस्सा आया। And aggression क्या है? Aggression ये है, this is what we call as aggression. I just want to push you, I want to punch you, I want to hurt you physically, and this is what we call as aggression. मुझे गुस्सा आया, I just want to throw away the things in the home. अब मैं घर में अपने रूम की चीज़ें तोड़ फोड़ दूंगा। I will shout at my mom, I will shout at my brother or my sister or anybody there around. I'll start hitting my pet. मैं उसको irritate करूँगा because I am showing my aggression and showing aggression is always bad. Anger हो ना, just come and say to your mom that I'm not happy, I'm sad, maybe I am angry, but don't shout, don't fight, don't quarrel, don't involve in the physical fight. Agreed that you are angry, just go to the another room, do deep breathing like this. So in this way, do at least 10 times, take a glass of water, right? Do 10 deep breathings, and after that you will feel that you are relaxed now, right? So anger is an emotion and it is okay to be angry. Aggression is acting out inappropriately. We need to know that inappropriately. It is not appropriate, it is not desirable, it is not good the way you are expressing your anger, right? And it is not okay. Learn to check your aggression and express your anger appropriately. गुस्सा आया है, very good. जैसे feeling happy is good, but happiness का मतलब ये नहीं है that I should play music at the highest pitch so that others are also getting disturbed. No, you cannot do that. Rather, you should not do that, right? So जैसे हमें happiness को express करना चाहिए properly, ऐसे ही हमें anger को भी express करना चाहिए properly, right? Now, approaches of anger. हम 3 तरीके से anger को express करते हैं. Either we express, or we suppress, or we calm down. Express कैसे करते हैं? You have to learn how to make clear what your needs are and how to get them done without hurting others. आपको गुस्सा आया, you wanted something, लेकिन वो आपके किसी दोस्त ने ले लिया. You wanted, you worked very hard in the exam, लेकिन somehow आपसे कोई mistake हो गई, आपके marks कट गए, जबकि आपके दोस्त को पूरे marks मिले. You feel angry, right? अब उस anger का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप दोस्त के साथ जाके लड़ाई करेंगे. उस anger का मतलब ये है that you will work hard next time.
you will work hard. Next time you will say, you will go and just congratulate your friend that, oh, heartiest congratulations for your success. I will also work very hard to get the similar marks next time. So work hard and channelize your anger towards working hard. Make it a target that अगली बार आपको और अच्छे नंबर लेके आने. That is the proper expression. Suppressing anger, this happens when you hold in your anger, stop thinking about it and focus on something positive. हम suppress कब करेंगे? हमने उसको दबा दिया. I don't want to talk about it. Mama, please don't talk to me about it. वो बुरी बात है. I don't want to remember. I don't want to be reminded about that. Just don't talk about it. Right? हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे. अब बात नहीं करेंगे तो वो निकलेगा कैसे? It is also not good. So always don't try to suppress that. Always share that with someone close to you. That someone can be anybody, your parents, your grandparents, your friends, your teachers. You can go at least and say that you did not like that, you are not happy about that, and you just want to overcome that feeling. So suppressing is also not good. Then calming anger. This means that not just controlling your outward behavior, but also about controlling your internal responses. Taking steps to lower your heart rate, calm yourself down and let the feelings get subsided. हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ योगा करेंगे, right? हम यहाँ योगा करेंगे. हम यहाँ breathing techniques करेंगे, right? We will focus on our breath. हम यहाँ progressive या relaxation exercises करेंगे, right? We will do that, right? Or we will do meditation to calm down. Meditation करेंगे. या और हम क्या कर सकते हैं? We'll go out and start spot jog. हम spot jog करना शुरू कर देंगे. हम spot jog करेंगे, हम skipping करेंगे, so that हमारा ये जितना भी गंदा वाला एंगर था ना, जितना भी गुस्सा में आ रहा था, वो सारा गुस्सा निकल जाएगा. आप जब बहुत सारी एनर्जी करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, तो आपका ये सारा गुस्सा निकल जाएगा and you will be in the calmer situation. So always remember one thing. बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, talk to somebody. Don't be aggressive physically. किसी को physically hurt मत करिए. गुस्सा आ रहा है, बता दीजिए that I am not happy, I am angry. उसको दबाइए नहीं. Talk to somebody. Or you can go for yoga, breathing exercise, relaxation exercise, meditation, spot jogs, skipping and so on. और आप गार्डनिंग भी कर सकते हैं. ठीक है? गुस्से में कोई एक प्लांट ही लगा डालिए. Go to outside of your home, एक अच्छा सा प्लांट खरीद के लाइए या लेके आइए, या घर में कहीं आसपास हो उनसे मांग के लीजिए. एक छोटा सा गमला लीजिए, उसके अंदर एक प्लांट लगा दीजिए. आपको भी याद रहेगा कि उस दिन जब आपको बहुत गुस्सा आया था, आपने ये प्लांटेशन किया था. एंड धीरे धीरे जब वो प्लांट बड़ा होगा तो यू विल फील हैप्पी बिकॉज यू हैड नर्चर्ड दैट प्लांट. यस, सो दीज आर द वेरियस अप्रोचेस. सो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एंगर के? जब हमें बहुत गुस्सा आता है, इट कैन लीड टू प्रॉब्लम एट स्कूल. आपके दोस्त आपसे नाराज हो गए. हियर वी कैन सी दीज वर द गुड फ्रेंड्स, दीज टू गर्ल्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स. लेकिन झगड़ा हो गया, एंगर आया, एंगर ने अग्रेशन किया, मारपीट हुई, बुरे वर्ड्स हमने एक दूसरे को कहे, and now both of them are not talking to each other. Oh, such a bad thing that they have lost the wonderful friendship between them. So अभी ये दोनों दोस्त आपस में नाराज हो गई हैं because due to something or the other they felt anger. उनको किसी बात पर एक दूसरे की गुस्सा आ गया, right? गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया? They started fighting, right? Aggression, fighting behavior में चले गए वो, right? और उससे क्या हुआ? उनका दोस्ती जो बहुत पक्की वाली दोस्ती थी, उनकी वो नेगेटिव हो गई. एंड नाउ दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, राइट? सो दे हैव लॉस्ट द कंपनी. सो इट लीड्स टू प्रॉब्लम एट स्कूल, होम एंड कम्युनिटी. रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम. जब हमें बहुत गुस्सा आता है ना, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है. जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये आज ना थोड़ा सा माइक हमें प्रॉब्लम कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ तो आ ही रही है. तो जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हम बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, हम थकान महसूस करते हैं. फिजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक स्टेइंग अलोन एंड सो ऑन. सो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं. लो सेल्फ एस्टीम भी होता है बिकॉज डांट पड़ी. जब गुस्सा किया, अग्रेशन में गए,
वायलेंस में गए, बुरा बोला, लड़ाई करी, तो लोगों से डांट पड़ी, एंड वो डांट पड़ने की वजह से आई गॉट द लो सेल्फ एस्टीम, बिकॉज सबने कहा जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम ऐसे ही बिहेव करती हो या ऐसे बिहेव करते हो, एंड आई फेल्ट बैड कि मुझे ऐसे डांट दिया, सो इट कॉज्ड लो सेल्फ एस्टीम एंड अदर वेरियस प्रॉब्लम्स, राइट। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। पॉसिबल ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट यू वांटेड समथिंग और आपको ना कह दिया गया कि नहीं नहीं आज ये वाली चॉकलेट नहीं खानी है, नो नॉट टुडे, ये वाली आइसक्रीम आज नहीं मिलेगी, आइसक्रीम से गला खराब होता है, नहीं खाना, यू स्पॉइल्ड योर मूड, आपका मूड खराब हो गया, राइट, एंड आपको गुस्सा आया, एंड यू जस्ट स्टार्टेड answering back to your parents, grandparents or anybody, and you became aggressive in your approach. Getting teased, किसी ने चिढ़ा दिया, and you became so sensitive, so touchy, and you started fighting with the person. Being interrupted, आप कुछ बोल रहे थे, किसी दूसरे ने आपकी बात काट दी, you felt bad, and you started just verbally fighting with that person, bad. Not being listened to, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी. When someone is unfair, किसी ने आपके साथ गेम में चीटिंग कर ली, यू लॉस्ट द गेम, आप हार गए, हार जीत तो होती रहती है ना, सभी के साथ होती है, इट इज़ नेवर पॉसिबल दैट हम हर गेम जीत जाएं, राइट, एंड गेम हम खेलने के लिए खेलते हैं, हैप्पीनेस के लिए खेलते हैं, फन के लिए खेलते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं खेलते कि हर बार हम जीतें, राइट। सो लूजिंग अ गेम इज ऑल्सो एंड एक्सेप्टिंग योर डिफीट इज रियली एन आर्ट। जो बच्चा अपनी हार को भी अच्छे से लेता है, स्माइल करता है, जीतने वालों के साथ कोऑपरेट करता है, वो हमेशा विनर होता है लाइफ में। ऑलवेज रिमेंबर, गेटिंग स्टक विद होमवर्क, आप होमवर्क करने बैठे, आपसे हो नहीं रहा है, एंड यू आर अफ्रेड कि अब मैं मम्मी के पास जाके पूछूं या पापा के पास जाके पूछूं या ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके पूछूं तो मुझे डांट पड़ेगी कि पहले से क्यों नहीं सोचा था, पहले से क्यों नहीं पढ़ाई करी थी, एंड आई एम वरीड अबाउट दैट, इसलिए मैं करती नहीं। चलो अब करा नहीं तो कल स्कूल में डांट पड़ेगी, एंड दैट विल अगेन स्पॉइल योर मूड, राइट। कॉपी में मैम रिमार्क लिख देंगी दैट इज होमवर्क नॉट डन, right, and next day when your bag will be checked at home, you will be caught, you will be scolded, and again that will spoil your mood, right. Someone taking something belong to you, किसी ने आपकी कोई चीज ले ली है तब भी आपको गुस्सा आता है। oh, the most irritating thing is getting ready early in the morning, सुबह सुबह उठना और तैयार होना, and particularly अब जबकि सर्दियां आ रही है ना, it is really bad, even bad for me, I also don't want to get up and get ready early in the morning. Here we can see this boy has somehow lost the match and feeling so angry. उसको अच्छा नहीं लग रहा है, in a bad mood. This girl is coming back from the school and some bad thing had happened in the school. कुछ ऐसा हुआ है, या तो डांट पड़ी है या होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए this girl is sad. These two friends, they are fighting in the verbal fight. उनकी आपस में झगड़ा हो गया। इस बच्ची को किसी ने नो कह दिया कि नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, एंड शी इज अपसेट, एंड दिस पुअर बॉय होमवर्क नहीं हो पा रहा, इतना सारा पाइल्ड अप है, देखो यहाँ पे ना 3 बुक्स हैं, यहाँ पे ये 2 बुक्स हैं, एंड शी इज दिस पुअर बॉय सो अपसेट। अब क्या होगा, ये सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने दुख को एक्सप्रेस करेंगे, कोई कोई बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, एंगर में चला जाएगा, अग्रेशन में चला जाएगा, फाइट बिहेवियर करेगा, वर्बल अब्यूज करेगा, argumentative हो जाएगा, and all these things are going to affect them badly, right? So these are the possible triggers. अब हम कैसे क्या क्या strategies करेंगे to deal with? Here we can see so many things. Breathe in and out slowly at least 10 times. Deep breathing, right? हम गहरी सांस लेंगे, उसको hold on करेंगे, फिर उसको बहुत force से बाहर निकालेंगे। तो जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स भी निकल के बाहर चले जाते हैं। आज जरूर करके देखिएगा, राइट। वी कैन डू द स्क्वीजिंग ऑफ द स्ट्रेस बॉल, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेस बॉल। आई ऑल्सो हैव अ येलो कलर बॉल विद मी। जब भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं उसको ऐसे ऐसे करने लगती हूँ, मेरा गुस्सा थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। सो स्क्वीज बॉल, टेक अ ब्रेक, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, दूसरे कमरे में चले जाइए, मम्मा अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई एम गोइंग टू द अनदर रूम, आई टेक ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन कम बैक। टॉक टू समबडी ग्रोन अप, किसी बड़े के साथ बात कर लीजिए, आपको गुस्सा आया है, एंड व्हाट यू शुड डू, रैप योर आर्म्स अराउंड योरसेल्फ,
ऐसे करके अपने आप को टाइटली हग कर लीजिए, जस्ट हग योर सेल्फ वेरी टाइटली एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल. आई ऑल्सो डू द सेम व्हेन आई एम वेरी एंग्री. जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं कई बार अपने आप को ऐसे करके बहुत कस के होल्ड कर लेती हूँ एंड आई रियली फील वेरी रिलैक्स्ड. सो यू कैन डू दिस. ड्रॉ अ पिक्चर अबाउट इट. कुछ पेंसिल से स्केच बनाना शुरू कर दीजिए, कलर्स यूज करिए. सो आप जब कोई स्केचेस बनाएंगे ना तो वो भी आपका एंगर निकाल देता है. राइट अबाउट योर फीलिंग्स. यू कैन ऑल्सो राइट डाउन. डू सम स्ट्रेचेस. कुछ एक्सरसाइज करने चले जाइए, योगा कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, डांस कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, बास्केटबॉल खेल लीजिए, कुछ भी यू कैन डू. राइट. थिंक ऑफ समथिंग हैप्पी. कुछ पुरानी हैप्पी मेमोरीज में चले जाइए, और यू कैन रीड अ मैगजीन और अ बुक. सो हियर वी कैन सी द चाइल्ड इज squeezing the ball. This child is reading the magazine. These two children are doing the exercises. This one is talking to somebody elder to her and taking a good advice. She is drinking a glass of water. So all these are basically the techniques which releases your anger. And how to identify that yes you are angry? When you cannot focus. आप पढ़ने बैठे, आपका मन नहीं लग रहा है. You are not talking to people properly. आप बहुत बार बार irritate हो रहे हैं. Right? Heavy breathing, बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं. You have become argumentative. आप बात बात पर बहस कर रहे हैं. आप किसी को घूर रहे हैं. Go quiet and shut down. आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं. No, आप मुझसे बात मत करो. I don't want to talk to you. So you are just quiet. So this is also the thing. Throw things. आपने कोई चीज उठा के फेंक दी. Understand that you are in the anger state. You are making angry faces and becoming aggressive as well as unnecessary crying. Here we can see this boy is crying. So these are the indicators that yes you are angry, right? And what are the problems? Anger से होता क्या है? सबसे ज़्यादा तो हमें टेंशन होती है, हम लो फील करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है. एंड हमें तो पता चल गया ना कि कोविड में हमारा इम्यून सिस्टम कितना काम करता है. सो हमें इम्यून सिस्टम को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है ना, वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है. इसलिए नो एंगर जोन, राइट? गुस्सा नहीं करना है. शॉर्टर लाइफ स्पैन, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द anger. 6 top tips for managing your anger. First is remember your thoughts cause your anger, not the other person. हमने खुद से अपने आप को परेशान किया है, किसी दूसरे ने हमें कोई परेशानी नहीं करी है. It is just that how we perceive. हमने चीज़ों को कैसे देखा and accordingly I am getting angry. The way I am looking at things, that is making me angry. Think, where am I on the tension, stress scale? And just try to understand कि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं, right? कितने पॉइंट देंगे आप अपने आप को गुस्से में. आप 10 पॉइंट रेटिंग स्केल पे अगर आपने अपने आप को 7 या 8 दिया, means that you need to do something to calm down, to bring down your anger level, right? Ask, is my anger going to help me achieve my goals? खुद से पूछिए कि इतना गुस्सा करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी. क्या आपको वो फेवरेट पेस्ट्री मिल जाएगी? क्या आपको वो फेवरेट गेम मिल जाएगा गुस्सा करने से? शायद नहीं. ओके. देन प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए. रोज मेक इट अ पॉइंट कि सुबह एटलीस्ट 10 times deep breathing you will do in the morning and 10 times deep breathing you will do in the evening, and in between you will do yoga, you will do aerobics, you will do dancing, you will play games and sports and something like that, right? Stop being defensive. Listen to other people also. If your elder people are saying that तुम आजकल बहुत आर्ग्यूमेंट करने लगे हो, तुम तो आजकल बहुत बहस करते हो, तो जस्ट होल्ड ऑन, लिसन टू देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता है दैट घर में बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशियस फूड बना है, दाल बनी है, ग्रीन वेजिटेबल बना है, लेकिन आप खाना नहीं चाहते क्योंकि आपको तो मैगी चाहिए, आपको तो पास्ता चाहिए. एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स आर अवेयर कि अगर आपने न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाया तो आपके पैर में दर्द होगा, आपके बोन्स में कमजोरी आएगी, आपके बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे. इसलिए दे आर इंसिस्टिंग दैट यू शुड हैव अ हेल्दी फूड. लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो जंक फूड चाहिए. एंड यहाँ पे हमारा पेरेंट का और बच्चे का क्लैश होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं दैट यू शुड गो फॉर दैट. सो अगर मुझे लगता है कि इट इज़ गुड फॉर मी, देन एक्सेप्ट देम. उनकी बात मानिए. इफ नेसेसरी वॉक अवे एंड काम डाउन. और बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आ जाए तो आप फिर वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाइए, ठंडा पानी पीजिए एंड देन कम बैक.
So always pay attention to that. You need to be very careful about that how you are going to deal with it. And I hope that children, throughout the week till we meet next week, आप लोग सब इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि एंगर कहाँ पर है और अग्रेशन कब हो जाता है. आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए. डिस्कशन इज हेल्दी, आर्ग्यूमेंट्स आर अनहेल्दी. एंगर इज ओके, aggression is not okay. So just be careful that how you are making the difference between the two. बहुत सारे situations आएंगे throughout the week जब आपको बहुत ज़्यादा anger feel होगा, but you have to manage कि आपको इसे aggression में नहीं convert करना है. Deep breathe करनी है, योगा करना है, exercise करनी है, पानी पीना है, and you are supposed to talk to your elders. So I hope that you all will take very good care of yourself and you will manage your emotions also as well. So till we meet next time, bye bye, take care and take good health of yourself and good care of yourself. Bye bye.